Modi roadshow, election time. He's made India very strong on the international stage. Lots of people see that India's prestige has risen up over the last 10 years. He makes partnerships with the West, with Russia, with everyone. He's very active Prime Minister. This is good for India. More people see India in world politics. संसद में सीट ही नहीं मिलेगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बैठने के लिए, मोदी जी बनवाएंगे। केजरीवाल खुद खत्म हो जाएगा जेल में। अब की बार 400 पार कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में। और जो वो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी 100% सही होती है। ये झूठे चमचों वाली गारंटी नहीं है, ये विकास की गारंटी है। मोदी जी का चरित्र जो है वो देवता तुल्य है, तो हम भक्त हैं उनके। मोदी का रोड शो है, बनारस विश्वविख्यात है और बाहर से भी लोग आए, वो भी अद्भुत नजारा देख रहे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, व्हाट इज योर नेम? My name is Harry. Where are you from? From Scotland in UK. Okay, you know what is going on? Yes, Modi roadshow, election time. Modi road show, you know Narendra? Yes. I study international relations, politics, Okay. so I'm very interested to be here. Okay. So, what is your take about Narendra Modi and foreign policies of Indian government? So he's made India very strong on the international stage. Lots of people see that India's prestige has risen up over the last 10 years. He makes partnerships with the West, with Russia, with everyone. He's very active Prime Minister. This is good for India. More people see India in world politics. And You like Modi? I think he's very popular here. I have no comment on Indian politics, but I see how popular he is. Everyone screaming, Modi, Modi, let's go again. 4 more years. But so I think for the reputation of India, Modi has done very good things internationally. This is the constituency of Narendra Modi. Recently, he got elected 2 times from here, and now again he is contesting. Third time. And it shows him and Yogi how popular they are here, because 3 times for India, this is strong. And people say that while Modi is in power, people tell me Congress never have any chance. So I don't know if it's true. यहाँ पर जो विदेश से भी लोग आए हैं वो भी जान रहे हैं कि भारत के जो रिलेशंस हैं, फॉरेन पॉलिसीज वो कितनी बेटर है। सर, वेलकम टू इंडिया। नमस्ते। वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। सर, जो इन्होंने बताया कि दुनिया में आज भारत की बात हो रही है, मोदी जी की बात हो रही है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि मोदी ने क्या किया। मोदी ने बहुत अच्छा किया। हम भी उड़ीसा से आए, जय जगन्नाथ। हम भी मोदी जी का रैली में यहाँ जोग दिए हैं। हमको बहुत खुशी लगा काशी में आए के। काशी में इतना खूबसूरत मोदी जी ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया, स्वर्ग से बढ़िया बनाया है। So you are excited to watch PM Narendra Modi live? I planned to leave Varanasi 2 days ago, but I stayed for the roadshow because it's so exciting. Everyone's so happy. Everyone tell me, you cannot leave Varanasi, stay, see Modi. So There are 1 million people on the streets of Varanasi who are watching PM Modi in this road show. I watched the drone show. I see new trains, everything Modi done for Varanasi is very good. People very happy. थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू इंडिया। तो देख सकते हैं ये अभी जो है पूरा यहाँ पर जो है पूरा भगवा में माहौल हो चुका है। संसद में सीट ही नहीं मिलेगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बैठने के लिए, मोदी जी बनवाएंगे। नए संसद में लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। 60 सीट पे लड़ने वाले प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और बसपा वाले 80 सीट पे लड़ने में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इससे बड़ी दुर्दशा क्या है देश की? केजरीवाल खुद खत्म हो जाएगा। केजरीवाल खुद खत्म हो जाएगा जेल में, खुद ही खत्म हो जाएगा। और रही बात मोदी जी की, विपक्ष का काम है खाली बोलना, बोल के पब्लिक को बोला। मोदी जी ने और योगी जी ने काम किया है 10 साल से। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश जालौन। कहाँ से हैं? जालौन, यूपी जालौन। अच्छा, जालौन से आए हैं हाँ। रोड शो देखने के लिए। हाँ। तो जीत रहे हैं मोदी जी नहीं? अरे मोदी बम्पर जीते रहे, कहूँ नहीं लग रहा कहूँ। तो अखिलेश भैया? अखिलेश तो गए, राहुल गए, वे नहीं जीत पा रहे, कहूँ नहीं लग पा रहे। कांग्रेस? ना कांग्रेस कोई नहीं लग पा रहा। मेरा नाम ब्रिजेश है, हम बनारस से हैं। आपको बता दें कि ये चुनाव में कभी अखिलेश जल्दी आते ही भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर कोई विपक्ष पार्टी अजय राय को कोई जानता भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस? हम भाई बीजेपी, हम इस बार पहली बार चुनाव देने जा रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार वोट दोगे? हाँ, क्योंकि मेरा 18+ अब जाके हुआ है, क्योंकि मैं 20 साल का। अजय राय तो दल बदलूंगा तो कोई अता ही पता नहीं रहता। हमारे उनके पड़ोसी ही हम लोग हैं, मगर हम लोग भाजपा ही हैं, हम लोग भाजपा को वोट देते हैं। हाँ, क्योंकि पिछली बार सभासदी चुनाव हुआ है, अजय राय का कोई कैंडिडेट जीता ही नहीं। हाँ, कोई जीता ही नहीं। बुजुर्ग भी कुछ आए हैं। प्रभु जन, क्या नाम है आपका? मोदी जी आ रहे हैं 400 आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? 400 सीट हमारे जनता के दिल से आ रहे हैं। जनता जिताएगी? हाँ 400 दिलाएगी? जी।
पक्ष बोल रहा है 200, निष्पक्ष बोलने दीजिए। पक्ष बोलने से नहीं होगा। जी सर, पूरा माहौल आज तो बदल दिया। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों है ऐसा? क्यों? हर चीज देखिए, पूरा 14 से लेकर के 24 में क्या क्या नहीं बिका। जितनी घोषणा बीजेपी ने की सबको पूरा कर दिया। काम हुआ यहाँ पर? काम ही काम, देख नहीं रहे हैं काम, बताना पड़ेगा आपको। किसी से भी अंधे से भी पूछेंगे काम क्या है। यहाँ अभी उसी 14 में यहीं गोदौलिया पर आए थे मोदी जी, तारों का अंबार था, पूरा तार। कहीं दिखाई दे रहा है तार आपको? ये 2 व्हीलर पार्किंग बनाई ये है? 2 व्हीलर पार्किंग बनी है, ये मोदी जी की ही देन है। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद बनी? मोदी जी के आने के बाद ही बनी है। ये देते हैं पूरी एक रंग में है, सब मोदी जी ने। इसी पर उन्होंने पहला कमेंट किया, देते तारों से पूरा एकदम नीचे अंडरग्राउंड हो गया। तो देखा जाए तो हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। इसलिए हम लोगों ने पूरा, काशी ने तो पूरा अपने मान लिया है कि हमारा बेटा लड़ रहा है। उन्होंने बेटा, काशी का बेटा है, गुजरात के रहने वाले, कुछ गुजरात का, पूरा राष्ट्र का, पूरा विश्व का। अयम निजः परो बेटी गंडा लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारा प्रधानमंत्री कहता है पूरा विश्व ही संसार है। जय जय मोदी, हर हर मोदी। राहुल गांधी का क्या लगता है? राहुल गांधी कंफ्यूज नेता है, उसको कुछ आता जाता नहीं है। संन्यास अगर ले गए, मोदी जी के कर्मों पर कभी दिन हिमालय में जाके तपस्या करेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, भारत की जनता उन पर भी कल्याण। संन्यास की बात कह रहे हो, आज रायबरेली में राहुल गांधी ने बोला मुझे लग रहा है शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, शादी कर लेंगे तो और कल्याण हो जाएगा। वहीं कृपा रुकी हुई है उनकी, कृपा वहीं रुकेगी। लेकिन क्या किया जाए, उनका कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। कांग्रेस की वंशावली रुकना बहुत जरूरी है देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए। कांग्रेस की गांधी परिवार की? हाँ, गांधी परिवार की, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा भी सर कांग्रेस की विचारधारा भी हमेशा से बांटने नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया था, प्रियंका सर युवा नेता की तैयारी चल रही है आजकल। प्रियंका गांधी के बच्चों को आप भी जानते हैं जॉर्ज सोरोस के पैसे पे सारी प्रायोजित चीजें चल रही हैं देश में, देश को काटने की। अरविंद केजरीवाल का बाहर आके जिस तरीके से बयान देना है, उन सब के पीछे विदेशी ताकतें, विदेशी पैसा है। तो अब बोल रहे हैं मोदी अपना उत्तराधिकारी बता दे, नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में मार काट लेंगे। मोदी जी ने कहा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक उनका वारिस है, मतलब प्रत्येक नागरिक उनका उत्तराधिकारी है। जो जनता के बीच में बात अपनी अच्छी रख पाएगा, काम कर पाएगा, वो उनका उत्तराधिकारी है। तो आपको लगता है कि अब अगर मान लीजिए राहुल गांधी शादी करे ना करे उनका विषय है, बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चे भविष्य के नेता हो सकते हैं कांग्रेस? देखिए, जिस तरह की आंधी चल रही है, जिस तरह का विकास और जिस तरह की घोषणा पर काम हो रहा है ना, गांधी परिवार अब खत्म होने वाला है। परिवारवाद को हटाना भी उद्देश्य था, और मोदी जी का पहला भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये दोनों भारत के लिए कैंसर है। उस कैंसर को दूर करने का काम मोदी जी ने किया है, और इसी तरह कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। परिवारवाद के रूपी कैंसर जो है इस चुनाव में खत्म कर देंगे। कि हमारे ऊपर अंधभक्त होने का आरोप लगता है। जब ये देखिए, इन्होंने खुद कहा है हम पर अंधभक्त होने का आरोप लगता है, क्या कहना चाहेंगे? सो आई वांट टू क्लैरिफाई कि मोदी जी का चरित्र जो है वो देवता तुल्य है, तो हम भक्त हैं उनके। जब चारित्रिक विशेषता देवता जैसी हो तो हम उनके भक्त हैं। आपने कहा अंधभक्त का आरोप लगता है, भक्त और अंधभक्त में अंतर हो गया। वो अंधभक्त बोलते हैं कि वो हमारी दीवानगी, हमारी भक्ति देख के उनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ पार्टी की नेताओं की चमचागिरी लोग केवल पैसे और पद प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कितने लोगों के पास प्रतिष्ठा है, लेकिन सभी लोग मोदी जी के लिए जान दे के लगे हुए हैं, जान दे के। करिश्मा है ये मोदी जी का, क्या करिश्मा है? देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता, ये काशी के क्षेत्र में आके मोदी जी यहाँ के बेटे हैं, ठीक है। यहाँ पर उनको 400 पार का जो उनका नारा है, यहाँ पर भोलेनाथ की कृपा से वह पूरा होने वाला है। इसीलिए आज का जो रोड शो है ये पूरे सीट को कवर करने के लिए है। पूरे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर जो भी मतदान हो रहा है, 80 सीटों में 80 सीट भाजपा निकालेगी इस बार। आदित्यनाथ योगी जी ने भी ये बहुत बड़ा बयान दिया है, और जो वो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी 100% सही होती है, ये झूठे चमचों वाली गारंटी नहीं है, ये विकास की गारंटी है। और काशी की जनता ने ठान लिया है कि अब की बार 400 पार सीटें हमको ले आनी है। आपका क्या नाम हुआ? गणेश वर्मा। मूछें बड़ी शानदार रखी हैं। बस मोदी जी की देन है, मुझे ऊपर रहती है। मोदी जी की देन है। हाँ, भी हाँ, मुझे शान से चलिए, शान से जब चलिए। अपना देश मजबूत रहेगा
जब अपना देश मजबूत रहेगा तो मूछें ऐसे ही खड़ी रहेंगी। हाँ, पाकिस्तान में पाकिस्तानी पीओके में पाकिस्तानी सेना को गड्ढे में खाई में उठा के लोग फेंक रहे हैं। पहले पत्थरबाजी हमारे यहाँ कश्मीर में होती थी, बोलते थे कि तिरंगा कोई फहराएगा। टुकड़े कर दिए थे साहब, भारत पाकिस्तान के टुकड़े भी कर दिए थे एक बार। अपन क्यों आज पुरानी बातों को लेके बैठे? तब का दौर था, आज का दौर अलग है। आज मोदी जी इतना विकास पे ले जा रहे हैं, आज पुरानी बातें नहीं, आज का ही है, कल की खबर है। पाकिस्तानी रेंजर्स को पीओजेके में फख्र की बात है ना, हमारी सेना का सामर्थ्य है ये, हमारे देश की प्रधानमंत्री जी की पीओजेके जो है वहाँ के लोग अब डिमांड कर रहे हैं। पहले की आतंकवादी घटनाएं किसका सामर्थ्य होती थी? पहले भी वही सेना थी, आज भी वही सेना है। पहले हमारे संकट मोचन जी में ब्लास्ट हो रहा था, कैंट पे ब्लास्ट हो रहा था, जगह जगह बोलती थी। अच्छा सुनिए ना, जहाँ जाइए आप निर्देश होगा। कांग्रेस के एक नेता है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने बयान दिया कि हमें पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। आज मोदी जी ने मैं आपको ऐसी नपुंसक सोच रखने वाले हमारा देश चलाएंगे? आप बताइए। सुअर के औलाद है, सुअर के औलाद है वो। ठीक है, हाँ। अच्छा, फिर योगी जी ने भी कहा कि हमारे इधर हमने कोई फ्रिज में रखने के लिए लगाए हैं क्या? हमारे पास भी तो है। वो तो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन मानवता को, पूरी दुनिया की मानवता को अगर कोई बचाएगा तो वो केवल भारतवर्ष बचाएगा। अच्छा देखिए, मोदी में तो पूरा माहौल दिख रहा है। 7 साल से योगी सरकार भी है। योगी सरकार का काम कैसा है? योगी जी का काम अभी तो चाय वाले चाय पिला रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ बनेंगे उस दिन काढ़ा पिलाएंगे। काढ़ा। हाँ, भ्रष्टाचार का। बताओ आप, ये कौन सी चाय पीना बंद? योगी जी का काम कैसा रहा? अब वो तो काम है, एक प्रशासक से काम की अपेक्षा की जाती है ना, कैसा क्या रेटिंग देने की जरूरत नहीं है, उनका काम है। हम राहुल गांधी से थोड़ी पूछेंगे काम कैसा रहा। राहुल गांधी तो पीएम बनना चाहते हैं। क्यों बनना, वो जब बात की बात है। आज प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, पीएम बन सकते हैं। राहुल गांधी सिर्फ अपनी मम्मी के पीएम बन सकते हैं, भारत की जनता के नहीं। राहुल गांधी अपनी माता और अपने कांग्रेस वासियों के पीएम बन सकते हैं, भारतवासियों के लिए नहीं बन सकते हैं। योगी जी का काम कैसा रहा? योगी जी का ही काम तो आपको दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश और बनारस में योगी मोदी गूंज रहे हैं, दोनों गूंज रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से आप देखिए कि कितना डेटा है। सारी चीजें कोई लिखी लिखाई ऐसे बनी बनाई नहीं है, डेटा है, जीएसटी कलेक्शन है। आप देख लीजिए कि क्या हाल है। आज हमारे यहाँ क्या व्यापार में वृद्धि हुई है, आप देख लीजिए। और पहले केवल किसी के पास कोई माफिया का फोन चला जाता था, 50 लाख रुपए भिजवा देना। मेरे इन्होंने माफिया मिट्टी में भैया बाकी है, अभी कुछ बाकी है, वो भी मिल जाएंगे। भैया अखिलेश अब गाड़ी में अखिलेश विपक्ष अखिलेश यादव और सपा बोलते हैं क्या हो रहा है, कानून को हाथ में ले रहे हैं। देखिए, जब सामने वाले के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं। और हमारे पार्टी के लोग कितना काम होता है, उंगली पे भी गिनाएंगे, उंगली कम पड़ जाएगा। हम लोग यादव परिवार से हैं, लेकिन हम लोग योगी और मोदी राष्ट्रवाद का जो हम लोग समर्थन करते हैं। हम लोग जय जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।